children, I am Rachna. You all are welcome to my class. Today I am going to explain the first lesson of English literature of 11th class, My Struggle for an Education. This lesson has been written by a great Negro American writer, Booker T. Washington. The writer of this lesson was a poor Negro boy. In his early life, he had to struggle hard for his education. When he grew up, he became a reformer and leader of American Negroes. This lesson teaches us that we can achieve anything we want to have if we work hard for it and work wholeheartedly. Before I start this lesson, I have to say that please take a pen and notebook so that you can note the difficult words and their meanings in your notebook. Now, let us start the lesson. One day, while at work in the coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. One day, एक दिन, when I was working in a coal mine means कोयले की खदान. I happened to overhear. Overhear means to hear others secretly, to hear someone secretly. Miners means the persons who work in a coal mine. Colored people means people of black color, means Negro people. Virginia is the state of USA. तो एक दिन when I was working in a coal mine, एक दिन जब मैं अपने coal mine में काम कर रहा था, I had a chance to overhear two persons who were talking about a school for people of black color, which was situated somewhere in Virginia. मेरे कानों में दो श्रमिकों की आवाज पड़ी बात करते हुए एक महान स्कूल के बारे में जो कि नीग्रोस लोगों के लिए था, वर्जीनिया में किसी जगह पर. This was the first time that I had ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. Pretentious means showy, भव्य. This was the first time. ये पहला अवसर था कि that I had ever heard anything, कि मैंने कभी सुना हो किसी ऐसे स्कूल के बारे में या कॉलेज के बारे में that was more pretentious, जो कि ज्यादा भव्य था. छोटे मोटे जो कलर्ड पीपल्स के जो स्कूल थे उस टाउन में, मेरे कस्बे में, उनसे ज्यादा एक भव्य स्कूल के बारे में मैंने सुना हो. ये पहला अवसर था. Till now I had never heard about such type of school for the Negroes in my town. As they went on describing the school means जैसे जैसे वे लोग स्कूल के बारे में डिस्क्राइब करते गए, it appeared to me, मुझे ऐसा लगा that it must be the greatest place on earth, कि that this school must be the best place on earth, कि यह स्कूल अवश्य ही पृथ्वी के सबसे अच्छे स्थानों में से एक होगा. Not even heaven presented more attraction for me at that time than did the Hampton Normal and Agriculture Institute in Virginia. Not even heaven. Heaven means paradise. At that time, उस समय मुझे even paradise could not attract me more than Hampton Normal and Agriculture Institute in Virginia. उस समय स्वर्ग भी मुझे जो है मेरे सामने इतना अट्रैक्शन पैदा नहीं कर रहा था जितना कि हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वर्जीनिया में जो स्कूल था वो मुझे उस समय अट्रैक्ट कर रहा था. अबाउट विच, जिसके बारे में दीज मैन वर टॉकिंग, जिसके बारे में ये आदमी जो है बात कर रहे थे. आई रिजॉल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल. आई रिजॉल्व माने आई डिटरमिन, मैंने निश्चय कर लिया. एट वंस माने तुरंत. टू गो टू दैट स्कूल, उस स्कूल में जाने के लिए.
मैंने तुरंत उस स्कूल में जाने के लिए निश्चय कर लिया। Although, यद्यपि आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे नहीं मालूम था वेयर इट वॉज, वेयर दिस स्कूल वॉज सिचुएटेड, और हाउ मैनी माइल्स अवे, और हाउ मच डिस्टेंस is of this school from my town, how I was going to reach. I did not know the distance of this school from my house, and I did not even know how to go to that school, कि मैं कैसे इस स्कूल पहुंचूंगा। I was on fire constantly. I was on fire. On fire means excited. I was excited. कॉन्टिन्यूअसली, लगातार मैं एक्साइट हो रहा था, मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी। विद वन एम्बिशन, केवल एक इच्छा की, मुझे एक इच्छा थी, दैट वॉज टू गो टू द हैम्पटन, कि मुझे हैम्पटन जाना है। दिस थॉट वॉज विद मी डे एंड नाइट, यही विचार दिन रात मेरे साथ में लगा रहता था। इन द फॉल ऑफ 1872, in the autumn season of 1872, in the fall of means autumn season means पतझड़ का मौसम। 1872 के पतझड़ के मौसम में I determined to make an effort to get there, मैंने वहां पहुंचने के लिए प्रयास करने का इरादा बना लिया। To get there means to go there, effort means attempt, determine means resolved, मैंने वहां जाने के लिए प्रयास करने का निश्चय कर लिया। My mother was troubled with a great fear that I was starting out on a wild goose chase. My mother was troubled. मेरी माँ को एक गंभीर डर सता रहा था कि मैं एक इम्पॉसिबल काम के लिए जा रहा हूँ। Wild goose chase means होता है a foolish attempt for some impossible task, कि मैं एक असंभव कार्य को करने के लिए जा रहा हूँ। एट एनी रेट, खैर किसी प्रकार, आई गॉट ओनली ए हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर, आई गॉट हर अनविलिंग परमिशन टू गो टू वर्जीनिया, मैंने उनसे आधे अधूरे मन से अनुमति प्राप्त कर ली कि मैं दैट आई माइट स्टार्ट, कि मैं यात्रा पर जा सकता हूँ। I had very little money with which to buy clothes and pay my traveling expenses. मेरे पास बहुत कम धन था जिससे कि मैं अपने कपड़े खरीद सकता और यात्रा के खर्चों को वहन कर सकता। My brother John helped me all that he could. मेरा भाई जॉन ने मेरी सहायता करी जितना वो कर सका। But of course that was not a great deal. लेकिन वो सहायता भी मेरे लिए काफी sufficient नहीं थी। फाइनली द ग्रेट डे केम, फाइनली मीन्स एट द एंड, अंत में वो महान दिन आया। एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, एंड आई गॉट रेडी टू गो टू हैम्पटन, मैंने हैम्पटन जाने के लिए यात्रा शुरू की। I had only a small cheap sachet that contained the few articles of clothing I could get. मेरे पास एक छोटा small cheap माने सस्ता, less expensive, sachet means एक छोटा थैला था, that contained जिसमें few articles means things, जिसमें dresses कपड़ों की कुछ चीजें थी। I could get जो कि मैं प्राप्त कर सका वहाँ पर, वो थोड़े से कपड़ों की चीजें मेरे पास थैले में थी। My mother at the time was rather weak and broken in health. At that time my mother was weak and ill. मेरी माँ जो थी वो बीमार थी, कमजोर थी। I hardly expected to see her again and thus our parting was all the more sad. I hardly expected, मैं मुश्किल से ही आशा कर सकता था कि मैं उनको दोबारा देख पाऊंगा। एंड thus, इसीलिए अवर पार्टिंग माने हमारा जो डिपार्चर था, एक दूसरे से जो बिछोड़ना था, वो ज्यादा ही दुखदायी था। She however was brave
वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल। यद्यपि उसने जो है, मेरी माँ ने, माई मदर बिहेव्ड वेरी ब्रेवली ड्यूरिंग अवर डिपार्चर। इस दौरान उन्होंने बहुत ही बहादुरी से अपने को संयम बनाए रखा। The distance from Malden to Hampton is about 500 miles. माल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 माइल्स है। By walking, begging rides, both in wagons and in the cars, in some way, after a number of days, I reached the city of Richmond, Virginia, about 82 miles from Hampton. By walking, मतलब पैदल चलकर, by walking, by asking people to carry him free in his wagons and in the cars. After some days, I reached the city of Richmond, which was about 82 miles from Hampton. मतलब पैदल चलकर, लोगों से वैगन मीन्स हॉर्स के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां, वैगन में और कार में लिफ्ट लेकर किसी प्रकार कई दिनों बाद मैं रिचमंड सिटी में पहुंचा। वर्जीनिया की ही रिचमंड सिटी में पहुंचा, जहां से हैम्पटन जो है 82 माइल्स दूरी पर था। When I reached, जब मैं वहां पहुंचा, I was tired, totally exhausted. Tired means exhausted. मैं बहुत थका हुआ था, भूखा था, hungry and dirty, और गंदा था। It was late in the night, और बहुत रात हो चुकी थी। I had never been in a large city. मैं इससे पहले I had never gone before in such a large city. मैं इससे पहले कभी भी इतने बड़े शहर में नहीं गया था। And this rather added to my misery. Misery means discomfort, suffering. इसी बात ने मेरे discomfort, मेरी suffering, मेरी परेशानियों को added means increase, और बढ़ा दिया। इसी बात ने मेरे कष्टों को और बढ़ा दिया। When I reached Richmond, जब मैं रिचमंड पहुंचा, I was completely out of money. मैं विदाउट मनी था, यानी मेरे पास सारा पैसा खत्म हो गया था। I had not a single acquaintance in the place. मैं उस समय I did not know anyone in that city. मैं उस स्थान में किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता था। And being unused to city ways, and I was unknown to the manners of the city. I did not know where to go. मैं शहर के तरीकों से अनजान था। I did not know, मैं नहीं जानता था कहाँ जाऊं। I asked at several places for lodging. मैंने रुकने के लिए, ठहरने के लिए कई स्थानों पर लोगों से पूछा। But they all wanted money. लेकिन वे सभी जो हैं स्थान रुकने के लिए, उन सभी को पैसे की आवश्यकता, मनी की आवश्यकता थी। एंड दैट वॉज वॉट आई डिड नॉट हैव, और यही चीज मेरे पास नहीं थी। नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, आई वॉक द स्ट्रीट। देयर वॉज नथिंग एल्स बेटर टू डू, सो आई प्रिफर टू वॉक ऑन द स्ट्रीट। मैंने और कुछ अच्छा ना जानकर, और कुछ करने के लिए अच्छा ना जानकर, केवल मैं सड़कों पर टहलता रहा। I must have walked the street till after midnight. मैं अवश्य ही आधी रात के बाद तक सड़कों पर चलता रहा। Means I kept on walking the street after midnight. At last I became so exhausted that I could walk no longer. Exhausted means badly tired. No longer means no more. मैं इतना badly tired हो गया, इतना थक गया that I could not walk no more. I was tired, मैं थका था। I was hungry, मैं भूखा था। I was everything but discouraged, सब चीज थी, लेकिन मैं I did not lose my courage. Just about that time, तभी वो समय आया when I reached extreme physical exhaustion, जब मैं great fatigue फील करने लगा। वहाँ जब मैं बहुत थकान महसूस करने लगा, I came upon a portion of a street where the broad sidewalk was considerably elevated. तो मैं गली के
स्ट्रीट के ऐसे पार्ट पर पहुंचा जहां पर फुटपाथ जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ था। I reached at the part of the street where white footpath was much raised. I waited for a few minutes till I was sure that no passerby could see me. I waited for a few minutes माने मैंने कुछ मिनटों तक प्रतीक्षा की जब तक कि मैं आश्वस्त नहीं हो गया। Till I was sure that no passerby could see me, कि कोई राहगीर, no person could see me, कोई भी राहगीर मुझे देख नहीं सकता। And then crept under the sidewalk, उसके बाद मैं उस फुटपाथ पर लेट गया। एंड ले ऑन द नाइट ऑन द ग्राउंड, और उस ग्राउंड पर सारी रात लेटा रहा। विद माई सैशे ऑफ क्लोथिंग फॉर अ पिलो, अपने थैले को तकिया की तरह लगाकर मैं सारी रात जमीन पर लेटा रहा। नियरली ऑल नाइट आउट आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड, सारी रात मुझे अपने सर के ऊपर लोगों के कदमों की आवाजें मैं सुनता रहा। The next morning I found myself somewhat refreshed. अगली सुबह मैंने अपने को तरोताजा महसूस किया। But I was extremely hungry, लेकिन मैं बहुत भूखा था। As soon as there was light enough for me to see my surroundings, जैसे ही वहाँ इतना प्रकाश हुआ कि मैं अपने चारों ओर की चीजों को देख सका, I noticed, मैंने ये महसूस किया that I was near a large ship, कि मैं एक बड़े शिप के पास था। It seemed to be unloading a cargo of pig iron, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस पर से कच्चे लोहे का भार उतारा जा रहा है। कार्गो माने होता है गुड्स, carried into a ship. Pig iron means raw iron, कच्चा आयरन। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर से कच्चे लोहे का सामान उतारा जा रहा है। I went at once to the vessel, vessel शिप के लिए आया है। At once means immediately, मैं तुरंत ही वेसल के पास गया। And asked the captain, मैंने उसके कैप्टन से पूछा। To permit me, माने वो मेरी I asked the captain to allow me, कि वो मुझे allow करे, to help unloading the vessel, कि वो सामान उतारने में मेरी हेल्प ले ले, जिससे कि मैं in order to get money for food, जिससे कि मैं भोजन के लिए पैसा कमा सकूं। The captain, a white man who seemed to be kind-hearted, जो कैप्टन था वो एक श्वेत व्यक्ति था, अंग्रेज था, जो कि एक मर्सीफुल व्यक्ति दिख रहा था। कंसेंटेड माने ही एग्रीड, वो तैयार हो गया, सहमत हो गया। I worked long enough to earn money for my breakfast, मैंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए पैसा कमाने के लिए काफी काम किया। एंड इट सीम टू मी, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है, एज आई रिमेम्बर इट नाउ टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन, जब मैं आज इस बात को याद करता हूँ, व्हेन आई रिकॉल दिस नाउ, as if it had been the best breakfast I had ever eaten in my life, कि मैंने अभी तक के जीवन में जितनी बार ब्रेकफास्ट खाए हैं उन ब्रेकफास्ट में से ये ब्रेकफास्ट मेरा सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट था। My work pleased the captain so well that he told me I could continue working for a small amount per day. मेरे काम ने कैप्टन को इतना प्रसन्न कर दिया कि उसने मुझसे थोड़ी सी मजदूरी पर डे अपने पास काम करने के लिए कहा। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, ये करके मैं भी काम करने के लिए बहुत खुश हुआ। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेसल फॉर अ नंबर ऑफ डेज, मैंने जारी रखा उस वेसल पर काम करना कुछ दिनों तक। आफ्टर बाइंग फूड विद माई स्मॉल वेजेस मीन्स मजदूरी, उस थोड़ी सी मजदूरी से खाना खरीदने के पश्चात देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे, इतना नहीं बचता था टू पे माई वे टू हैम्पटन, की मैं हैम्पटन तक पहुंचने का खर्च वहन कर सकूं। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी पॉसिबल वे, इस तरह से टू सेव मनी, इकोनोमाइज माने टू सेव मनी, पैसे को बचाने के लिए हर संभव तरीके से मैंने साइड वॉक पर लेटना जारी रखा।
साइड बॉक्स पर के नीचे सोना जारी रखा। When I had saved enough money with which to reach Hampton, जब मैंने enough means sufficient, जब मैंने काफी धन बचा लिया जिससे कि मैं हैम्पटन तक पहुंच सकूं, I thanked the captain of the vessel for his kindness, तो मैंने वेसल के शिप के कैप्टन को धन्यवाद दिया फॉर हिज काइंडनेस, माने उसकी मर्सी के लिए, उसकी दयालुता के लिए। एंड स्टार्टेड अगेन, और फिर से मैंने यात्रा शुरू कर दी। विदाउट एनी अनयूजुअल अकरेंस, बिना किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट। अनयूजुअल अकरेंस माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट, बिना किसी असाधारण घटना के मैंने अपनी यात्रा शुरू करी। आई रीच्ड रिचमंड, आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंचा विद अ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स विद विच टू बिगिन माई एजुकेशन। मैं हैम्पटन पहुंचा इतने अतिरिक्त 50 सेंट्स, 50 सेंट अतिरिक्त धन के साथ मैं हैम्पटन पहुंचा अपनी एजुकेशन शुरू करने के लिए। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3 story स्कूल बिल्डिंग, ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, सीम टू हैव रिवार्डेड मी फॉर ऑल दैट आई हैड अंडरगॉन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस। तो कहते हैं जैसे ही इन्होंने वो बिल्डिंग देखी, आई सॉ द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3 story ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, पहला दृश्य जो इन्होंने इतनी बड़ी 3 स्टोरी ईंटों की बनी बिल्डिंग का दृश्य देखा तो उन्हें लगा, राइटर कहते हैं कि मुझे लगा कि जैसे इस दृश्य ने मुझे इनाम दे दिया उन सारी परेशानियों का जो मैंने इस स्थान तक पहुंचने के लिए सही थी। द साइट ऑफ इट सीम टू गिव मी न्यू लाइफ, इस दृश्य ने मुझे नया जीवन दे दिया। मतलब जो स्कूल की बिल्डिंग थी, इट वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स, इट वॉज अ वेरी बिग बिल्डिंग, इट हैड 3 stories, इसमें 3 स्टोरी थी। जब ये वहां पर पहुंचे, आई रीच, व्हेन ही रीच देयर, तो ही रीच देयर विद मच पेन, वो काफी परेशानियों के साथ पहुंचे थे। तो जब उन्होंने दिखा बिल्डिंग को तो उन्हें लगा कि इन सारे परेशानियों का इनाम मुझे मिल गया। As soon as possible after reaching the grounds of the Hampton Institute, I presented myself before the head teacher for assignment to a class. As soon as possible, जितना संभव हो सकता था उतनी जल्दी हैम्पटन के ग्राउंड पर पहुंचने के बाद मैंने अपने आप को हेड टीचर माने हेड मिस्ट्रेस के सामने प्रस्तुत किया एडमिशन के लिए, क्लास में एडमिशन लेने के लिए। Having been so long without proper food, a bath and change of clothing, बहुत लंबे समय तक प्रॉपर खाना ना खाने की वजह से, बात मतलब स्नान ना करने की वजह से और कपड़े ना चेंज करने की वजह से, I did not of course make a very favorable impression upon her. मुझे I did not, मैंने जो है मुझे लगा कि मैंने उनके ऊपर एक अपना अनुकूल फेवरेबल इम्प्रेशन, इन्फ्लुएंस जो है उनके ऊपर नहीं बनाया, कि वो मुझे देखकर प्रभावित नहीं हुई। आई कुड सी एट वंस, मैं तुरंत उनके चेहरे को ही देखकर मैं ये समझ सका दैट देयर वर डाउट्स इन हर माइंड अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज अ स्टूडेंट, कि उनके मन में मेरी इंटेलिजेंस के लिए, मेरी विजडम के प्रति उनके मन में संदेह है। ऑफ एडमिटिंग मी एज अ स्टूडेंट, कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट के रूप में जो एडमिशन के लिए उनके मन में मेरी इंटेलिजेंस के लिए जो है उनके मन में संदेह था। फॉर सम टाइम शी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, कुछ समय तक तो उन्होंने मुझे एडमिशन देने से इनकार भी नहीं किया। शी डिड नॉट रिफ्यूज माने शी डिड नॉट डिनाई मी टू एडमिट मी, उन्होंने मुझे एडमिशन करने के लिए मना भी नहीं किया। नाइदर डिड शी डिसाइड इन माय फेवर, और ना ही उन्होंने मुझे एडमिशन दिया, मेरे फेवर में उन्होंने डिसाइड किया। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, आई कंटिन्यूड मैंने जारी रखा टू स्टे अराउंड हर, मैंने उन्हीं के पास में मडराना, मैं उन्हीं के पास बना रहा। एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज आई कुड विद माई वर्दीनेस, और मैं उनको इम्प्रेस करने के लिए हर तरीके से, उन पर इम्प्रेशन बनाने के लिए अपनी जितनी मेरी योग्यता थी, उस योग्यता से मैं जितना उनको इम्प्रेस कर सकता था उस तरह से मैं उनको इम्प्रेस करने के लिए वहीं पर बना रहा।
इन द मीन टाइम, इसी बीच आई सॉ हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, इसी बीच मैंने देखा उनको दूसरे स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हुए। एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, और इस बात ने मेरी बेचैनी को, मेरी अनइजीनेस को इंक्रीज कर दिया। मैं और बेचैन हो गया जब मैंने दूसरे स्टूडेंट को उनको एडमिशन देते हुए देखा। आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट, मैंने जो है बहुत ही मैं डिसअपॉइंटेड फील करने लगा। डीप डाउन मीन्स डिसअपॉइंटेड फील करना। दैट आई कुड डू एज वेल एज दे, मैं ये डिसअपॉइंटेड होने लगा, मैं ये सोचने लगा पता नहीं मैं वो कर सकता हूँ जितना वो लोग कर रहे हैं। आई कुड डू एज वेल एज दे, इफ आई कुड ओनली गेट अ चांस टू शो दैट वॉज इन मी, मेरे अंदर जो एबिलिटी है उसको शो करने के लिए मुझे एक चांस मिल सके, जिससे कि मैं भी कुछ कर सकूं जैसा कि ये व्यक्ति, जैसे ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं। आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड, द हेड टीचर सेड टू मी, कुछ घंटे व्यतीत हो जाने के बाद हेड टीचर ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग। एडजॉइनिंग माने ये जो बगल का, ये जो नेक्स्ट, रेसिटेशन मीन्स वो रूम जहाँ पर रूम फॉर रिसाइटिंग पोएम्स, कि ये जो बगल वाला रेसिटेशन रूम है इसमें क्लीनिंग की आवश्यकता है। टेक द ब्रूम, ब्रूम मीन्स झाड़ू, ये झाड़ू लो और स्वीप इट, और उसको साफ कर दो। इट अकर्ड टू मी एट वंस, मुझे तुरंत ऐसा महसूस हुआ, दैट हियर वॉज माई चांस, कि ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट, मैंने आज तक कभी भी इस तरह का कोई ऑर्डर इतनी खुशी से नहीं एक्सेप्ट किया था जितना मैंने वो ऑर्डर उनका एक्सेप्ट किया। आई सर्व द रेसिटेशन रूम 3 टाइम्स, मैंने उस रेसिटेशन रूम की 3 बार मतलब आई ब्रूम्ड, मैंने 3 बार झाड़ू लगाई। देन आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ, उसके बाद मुझे एक डस्टिंग क्लॉथ मिला, झाड़न मिला। एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम्स, और मैंने उसकी 4 बार डस्टिंग की। ऑल द वुडवर्क अराउंड द वॉल्स, वॉल के चारों ओर जितना भी वुडवर्क था, एवरी बेंच, हर बेंच, टेबल एंड डेस्क, टेबल और डेस्क, आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विद माई डस्टिंग क्लॉथ, मैंने अपने झाड़न से उसमें 4 बार उसकी डस्टिंग की। बिसाइड्स एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड, इसके अतिरिक्त हर फर्नीचर को मैंने सरका कर, खिसका कर, एंड एवरी क्लोसेट एंड कॉर्नर इन द रूम हैड बीन थॉरोली क्लीन्ड, हर कोना कमरे का, हर अलमारी जो दीवार में बनी थी, हर चीज की मैंने जो है थॉरोली मीन्स केयरफुली मैंने डस्टिंग करी, सफाई करी। आई हैड द फीलिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि दैट इन अ लार्ज मेजर माई फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन द इम्प्रेशन आई मेड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, कि बहुत बड़ी मात्रा में मेरा फ्यूचर जो है वो डिपेंड है उस इम्प्रेशन पर जो मैं आज उन हेड टीचर के ऊपर बनाऊंगा इस कमरे की सफाई करके। मेरी कमरे की सफाई से जो इम्प्रेशन जो टीचर पर बनेगा उस पर ही मेरा भविष्य जो है वो निर्भर है, मैं यह फील कर रहा था। When I was through, when I had completed my work, I reported to the head teacher. I informed the head teacher. मैंने अपनी head teacher को inform किया। She was a Yankee woman who knew just where to look for dirt. She was a Yankee woman. Yankee उन लोगों को कहते हैं the persons living in the northern state of USA. USA के नॉर्थ स्टेट में रहने वाले लोगों को यांकी कहते हैं। तो she was a Yankee woman who knew, जो जानती थी अच्छी तरह से where to look for dirt, कि धूल को कहाँ कहाँ देखा जा सकता है। She went into the room, वो रूम में गई and inspected माने examined the floor, उन्होंने फर्श का एग्जामिनेशन किया, क्लोसेट अलमारियों को देखा, एंड शी टूक हर हैंकरचीफ, हैंकरचीफ माने रुमाल, उन्होंने अपना रुमाल लिया एंड रब्ड इट ऑन द वुड वर्क अबाउट द वॉल, और दीवार में बने हुए जितनी भी वुडन वर्क थी उन सब को पर उसने क्या कि उन्होंने जो है अपना रुमाल को रगड़ा। एंड ओवर द टेबल्स एंड बेंच और टेबल पर भी रुमाल को रगड़कर उन्होंने देखा। When she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust on any of the furniture, when she was unable,
जब शी वॉज नॉट एबल, जब वो योग्य नहीं हुई पाने में, बिट ऑफ डर्ट माने कोई भी, बिट माने पीस ऑफ डर्ट, गंदगी का कोई छोटा सा भी पीस, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, और धूल का एक भी कण ना किसी फर्नीचर पर उन्होंने पाया। जब उसे पाने में वो अयोग्य हो गई, शी क्वाइटली रिमार्क्ड, शी साइलेंटली पीसफुली सेड, कमेंटेड, उन्होंने मुझसे कहा, धीरे से कहा, आई गेस यू विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूशन, मैं समझती हूँ, आई सपोज कि यू आर एबल टू गेट एडमिशन इन दिस इंस्टीट्यूशन। I was one of the happiest souls on earth. On being allowed admission, the writer felt very happy. He says, वो कहते हैं that I was one of the happiest souls on earth, कि मैं पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रसन्न लोगों में से एक था। The sweeping of that room was my college examination. कमरे की सफाई मेरा कॉलेज एग्जामिनेशन था। I have passed several examinations since then. Since then means since that time, after that time. उस समय के, उसके बाद मैंने बहुत सारे एग्जाम पास किए, but I have always felt that this was the best one I ever passed. लेकिन मैं हमेशा यह फील करता हूँ that कि यह एग्जाम जो था मेरे उन सारे एग्जाम में सबसे अच्छा एग्जाम था, क्योंकि मेरा फ्यूचर इसी एग्जाम पर डिपेंड था।